Dear student, as you know better that your subject is linguistics. Remember, dear student, in the previous class I imparted introduction regarding the linguistics. Now it is the fourth category, semantics. Your in your course contents you have got the first topic that is by the name of semantics. Remember, dear student, phonetics, phonology, morphology, syntax, then semantics. Remember, dear student, syntax, it is like the arrangement of word in a sentence. That how you are going to structure a sentence. For example, for positive structure, you have got subject, verb, object. For interrogative, you have got verb, subject, then object. Now, we are going to see the apparent structure of each and every sentence. If we deviate the same rule, so it means that our sentence is not grammatically correct. Now we are going to target semantics. Semantics actually it has got the meaning of meaning. And semantic we only focus meaning. We keep at aside the syntactical structure. We never bother about syntax. Either we are grammatically right or wrong, we do not bother. But instead of that, overall we are going to focus what we are going to focus meaning. सो सिमेंटिक बेटा इसका ताल्लुक जो है वो मानी के लिहाज से है. ग्रामेटिकली अगर आप रॉन्ग भी होते, फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू वेयर इज अली, नाउ अली, मैं कहता हूँ अली कहाँ है, आप कहते हैं अली घर है. तो अली घर है उर्दू में जैसे घर में है या घर पर है, आप नहीं कहते पर या में लफ्ज आप हजफ करते हैं बेटा. तो इससे आपकी मानी क्या होती है बेटा, ओवरऑल मीनिंग जो है वो क्या हो जाती है, वो कन्वे हो जाती है कि अली घर है मतलब है कि घर में है. So you do not bother and you never criticize his speaking. Why? Because the meaning has been conveyed. So exactly the same criteria is here in English language. Often we drop out preposition words, or often we drop out auxiliary verbs. But even though we can get the meaning of, or we can convey the actual meaning, whatever we talk about or whatever we are talking to, they are easily get whatever we talk about. Now, so far as the syntax is concerned, so in syntax, you are going to be exactly right. Grammatically, you are going to be exactly right. But so far as the semantic is concerned, dear children, and semantic from meaning perspective, you are exactly right. If you are right, then it is okay. Now, coming toward the definition of semantics, dear student, I have imparted or given three definitions. According to the first definition, the study of meaning and its manifestation in language is called semantics. In short, it is the study of meaning. We are not discussing grammar here in this semantic portion, dear student. The grammar will be studied and syntax as I talked about. Remember this thing. Now, the study of meaning of morpheme, words, phrases, and sentences. It is called what? It is semantics. And semantics, we study the meaning of morpheme, words, phrase, and sentence. What is morpheme? Morpheme is the minimal unit of meaning. It is the minimal unit of meaning. For example, work. Now, work is one morpheme. Why? Because it gives us meaning, work. You're going to do action. Now, if I do the addition of ER along with the same word, so it becomes worker. Now, remember, dear student, this worker word is comprised of two morphemes. One is work and the second one is ER. One is verb and the second one is ER, noun. So it changed the category from verb and to noun. Worker, now it is comprised of two. One is work काम or ER. It is the agent, it is the doer of an action. तो ये वर्क जो है इट इज कंप्राइज ऑफ टू मार्फिम. ER जो है ये बाउंड मार्फिम है बेटा, और वर्क जो है ये क्या है, ये सेपरेट मार्फिम है, फ्री मार्फिम है. मतलब ये है कि इसके लिए किसी और मार्फिम की जरूरत नहीं है, आजादाना तौर पर अपने वजूद बरकरार रख सकते हैं वर्क. और ER जो है बेटा ये बरकरार नहीं रख सकते अपने वजूद. जस्ट लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ वायरस और पैरासाइट.
सो पैरासाइट और वायरस ये किसी इंसान के जिल्द के बगैर, बदन के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकते। अगर इंसान के बदन से आप उसको निकालते हैं तो क्या हो जाता है, ये मर जाता है। एग्जैक्टली बाउंड मार्फीम भी इस तरह है। बाउंड मार्फीम को अगर फ्री मार्फीम के साथ डियर स्टूडेंट हम अटैच करते हैं तो उसकी मानी आ जाती है। अगर फ्री मार्फीम साथ में नहीं होता तो फिर बाउंड मार्फीम की मीनिंग का तशख़्ख़ुस करना क्या हो जाता है बेटा, मुश्किल हो जाता है। जस्ट लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ ER। अगर ER हम सेपरेटली इफ वी टेक ER, so you are not going to take meaning of ER. What does it mean? So it is difficult. But so far as this example is concerned, work. So if we do the addition of the same bound marking ER along with the free work, so worker, now we get the meaning. For example, work is verb, now worker, ER it is the agent, ये काम करने वाला है, इसको कहते हैं मार्फीम। और यह वर्ड है बेटा, नो वर्ड इज कंप्राइज्ड ऑफ मल्टीपल मार्फीम्स बेटा, चंद मार्फीम पर मुश्तमिल होता है एक वर्ड। और फ्रेज है और सेंटेंसेस, तो इन सारे के मीनिंग की जब बात की जाती है तो इसमें हम स्टडी करते हैं बेटा, सेमेंटिक में स्टडी करते हैं। खुलासा फिर ये हो गया बेटा, जब हम ग्रामर के लिहाज से किसी जुमले को देखते हैं कि वो दुरुस्त है या गलत है, तो वो सेंटेक्स होता है, SYNTAX सेंटेक्स। अगर हम सिर्फ मीनिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि मानी हम ले सकते हैं, तो फिर वो क्या है, वो सेमेंटिक है। Remember, dear student, just take the example of Urdu language. Now, off and on, I switch myself toward Urdu language, but I am not that much proficient enough in Urdu language. I have got drawbacks and deficiencies in Urdu language. For example, I can never recognize where to use ta, te, ti, and where to use ka, ke, ki. But even then, I know that the overall meaning, like my student, they are going to pick the overall meaning whatever I talk about. बेटा उर्दू में जिस तरह ताते ती के बारे में या काके की के बारे में हमें पता नहीं होता है, ऐसे मुख्तलिफ अल्फाज होते, लेकिन ओवरऑल हमें पता होता है जिस शख्स के साथ हम महवे गुफ्तगू होते तो हमें ये पता होता है कि जो मीनिंग या जिस चीज के बारे में हम बात करते वो हमारे वो जो सुनने वाले होते वो समझते। तो बस इट इज एग्जैक्टली राइट, बस ये ग्रामर के लिहाज से आप बिल्कुल दुरुस्त है। सो एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट इज देयर इन सेमेंटिक एज वेल। Now, the third meaning of semantic, dear students, semantic means the meaning and interpretation of words, sign, and sentence structure. It is called what, semantic. Now, if we take and do the analysis of all these three definitions, so we come to know that exactly what is semantic. Semantic, it is the study of meaning. The meaning of morpheme, the meaning of word, the meaning of phrases, or the meaning of sentences, whatever. So only we are concerned with the study of meaning. We are not concerned with the grammatical structure. यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सेमेंटिक की तारीफ आप समझ गए बेटे? Yes, sir. Ashabab. Now coming toward the etymology of the same semantic word, that from which source, from which language we have derived the same semantic word. Remember, dear student, the semantic word has been derived from a Greek word, sema. It is a Greek word. It is the combination of Greek words. It is compound Greek words. One is sema. Sema has got the meaning of sign or signal. And the word semian, signal, means signify, to show. Broadly speaking, semantics is that aspect of linguistics which deal with the relations between a reference name and reference thing. The linguistic level, word, expression are phrases and the objects or concepts or idea to which they refer. Now remember, dear student, यह एक कॉन्सेप्ट है, ये तो आपके जहन में आ गया कि सेमेंटिक जो ये सीमा से निकाला गया, साइन या सिग्नल को कहते हैं, वर्ब जो इसका है वो सीमियंस है, सिग्नल या टू सिग्निफाई, शो करना। बेटा हमारे पास सेमेंटिक्स में बेटा दो कोर कॉन्सेप्ट है। एक को हम कहते हैं रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब ये नेम जो हम लेते हैं, और दूसरी जो है रेफरेंट है, थिंग्स है। बतौर मिसाल, टेक द एग्जांपल ऑफ मोबाइल। आपके साथ मोबाइल है। अब मोबाइल ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हम मोबाइल MOBIL इस्तेमाल करते हैं।
बेटा इस रेफरेंट और रेफरेंट के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है. We do not know, or we cannot, we can never create relationship in between mobile, the name, and as well as the object. It is the abstract idea. इस तरह आप सैकड़ों और हजारों के तादाद में आप नाम ले सकते. ये सैकड़ों और हजारों के तादाद में जो नाम है, तो उस नाम के दरमियान और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं होता. हम कहते हैं हाउस या घर, जो हम इस्तेमाल करते हैं घर के लिए, तो ये घर के लिए क्यों इस्तेमाल होता है? ये नाम से हमें जाहिर नहीं होता, बट आमतौर पर ये लफ्ज, ये चीज इस्तेमाल होती है, इसलिए हम भी इस्तेमाल करते. इंग्लिश में हम कहते हैं बेटा हाउस, उर्दू में घर कहते, और पश्तो में कहते हैं कोर. बट देयर इज नो रिलेशनशिप इन बिटवीन द वर्ड, द नेम, एज वेल एज द रियल ऑब्जेक्ट. इस तरह सैकड़ों हजारों मिसाल आप ले लीजिए अपने रूम में. आप देखिए, खिड़की हो गई, डोर हो गया, फैन हो गया, डस्टबिन हो गया. तो इस तरह सैकड़ों हजारों मिसालें हैं, लेकिन उसके नेम्स जो है ये एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, ये कंक्रीट क्वालिटी नहीं है. हमें उसके नाम से ये पता नहीं चलता कि इसको हम क्यों कहते हैं. एप्पल को एप्पल क्यों कहते हैं बेटा? व्हाई डू वी कॉल एप्पल? नाउ वी डू नॉट हैव एनी solid explanation for, any solid like interpretation for, but we say, yeah, we call the same object apple because we have been listening the same name. बहुत जमाने से, सिंस लॉन्ग बेटा, बहुत एजेस से हम क्या कहते हैं, इस नाम को सुनते चले आ रहे. एप्पल ही कहते, सेब कहते, या मड़ा हुआ पश्तो में कहते बेटा. तो इन थिंग के दरमियान और जो उसके लिए जो नाम होता है, इसके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है. जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ योर ओन पर्सनल नेम, फॉरगेट अबाउट अदर ऑब्जेक्ट. सो आपका नाम जो होगा शहजादुर रहमान है बेटा, जो आप ऑनलाइन भी वलीउर रहमान है या सना मकसूद है. तो आप अपने नाम लीजिए बेटा. आपके नाम से आपके पर्सनालिटी जाहिर नहीं होती. जो चीज आप है या जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आपकी क्वालिटी है, जो आपका अपीयरेंस है बेटा, पर्सनल अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है, तो इससे और आप उससे, आपके नाम से उसका पता नहीं चलता. या मेरा नाम रियाज है, तो रियाज क्या मतलब? ये तो ये रियाज से मैं मशहूर हूँ, लेकिन मेरे बॉडी से तो रियाज की वो मीनिंग वो नहीं होती. सो रिमेंबर दिस थिंग, whatever words are there, majority of words, not only in English language, but each and every language, there is no concept, there is no real or concrete relationship in between names and things. Remember this thing. Few words है जिसके नाम, जो जो नेम हम इस्तेमाल करते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके दरमियान वन टू वर्ड रिलेशनशिप होता है. जिस तरह अनोमेटोपिक वर्ड होते हैं बेटा. टेक द एग्जांपल ऑफ अनोमेटोपिक वर्ड. नाउ अनोमेटोपिक वो अल्फाज होते हैं जो उस चीज की असल आवाज से हम निकालते हैं. बतौर मिसाल, पत्थर आप गिराते पानी में, वी कहते the stone splashed in water. No, splash, splash, उसके आवाज से हम ये निकालते हैं स्प्लैश कलमा. या हम कहते हैं he banged the door. ये बैंग डोर, ये ब्लांग से जो हम बंद करते हैं, तो बंग से आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है, तो ये रियल है. या इस तरह हम कहते हैं बेटा द कक्कू कुकू, या कक्कू है बेटा, या क्रो की आवाज भी उसके लिए वो इस्तेमाल होती है बेटा. तो ये जो है ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो होता है बेटा, ये उसकी आवाज से हम ये निकालते हैं. तो उसके नेम के दरमियान और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान क्या होता है? रिलेशनशिप. लेकिन इसके अलावा बाकी माना जितने भी अल्फाज होते हैं बेटा, ये एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज है. whatever words, whatever names you come across, all those words are abstract qualities. There is no real relationship in between the name and the actual object. Remember this thing बेटा, क्योंकि इसके ऊपर बाद में फिर बात हम करेंगे. Now coming toward बेटा semantics. Semantics दो तरीकों के, दो तरह से है बेटा. एक को हम कहते हैं, one is called diachronic semantics and the second one is synchronic semantics. Diachronic semantics का मतलब है it is historical semantics. Historical semantics का मतलब है it studies semantic change with the passage of time. पुराने जमाने में 19th सेंचुरी में लोग किस तरह अल्फाज इस्तेमाल करते थे, तलफ़ुज़ किस तरह करते थे, उसकी मीनिंग क्या थी, फिर क्यों चेंज हो गई. तो ये इसको हम डायक्रॉनिक में चेंज, डायक्रॉनिक सेमेंटिक में पढ़ते हैं कि अल्फाज की मीनिंग क्यों चेंज हो गई. ये डायक्रॉनिकली हम इसको स्टडी करते, तारीखी निगाह से जब हम देखते हैं बेटा. सो इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड डायक्रॉनिक सेमेंटिक. एंड वन इज सिंक्रोनिक सेमेंटिक.
Synchronic, it account for semantic relationship, simple or multiple. Synchronic का मतलब है कि मौजूदा कंटेम्प्रेरी एरा में जो अल्फाज के मीनिंग वगैरह में चेंजेस आ जाते हैं बेटा, या इसके कॉलोकेशन या कनोटेशन वगैरह में चेंजेस आ जाते, तो इसका ताल्लुक पुराने जमाने से नहीं होता, बस उसको हम अलहदा प्रेजेंट दौर में कंटेम्प्रेरी एरा में हम इसको स्टडी करते। इट इज कॉल्ड सिंक्रोनिक सेमेंटिक्स। Diachronic semantics, it is called historical semantics, dear student, as well. Historical semantic, it has got the meaning of, for example, how the meaning of a word changed with the passage of time. An ancient era, what was the meaning of the same word? Why it has been changed? Now we study it in diachronic. Synchronic, it is the contemporary meaning change. जो कंटेम्प्रेरी लिहाज से अभी इस जमाने में जो इसका ताल्लुक पास्ट से नहीं होता बल्कि प्रेजेंट में जो चेंजेस आते हैं उसको हम कहते हैं सिंक्रोनिक। आप समझ गए बेटा? और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर? नो सर। शाबाश। नाउ आते हैं बेटा सेमेंटिक्स एनालिसिस की तरफ। तो सेमेंटिक एनालिसिस में हमारे साथ एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम है, पॉलीसिमी है, एनामलीज है, कंट्राडिक्शन है, paraphrase, relationship, ambiguity. We are going to explain it a bit later as well, but anyhow, these are the semantic analysis. Now coming toward the 7 types of meanings, as I talked about, that one word may have more than 100 different meanings. Now those meanings are based on either on denotation, connotation, or euphemism. Because of these 3 criteria, now the change of meaning occurs. Now अब इसको हम बारी बारी पढ़ते हैं बेटा। एक, the number first is conceptual meaning, number second is connotative meaning, number third is stylistic meaning, number fourth is affective meaning, number fifth reflective, number six collocative, and number 7 thematic meaning. Now remember, dear student, now conceptual, which means abstract meaning, that is additionally famous, and the denotative or psychological feature, which means is widely assumed to be central, considered communication. We can also call the conceptual meaning as literal or dictionary meaning. Remember, dear student, as I talked about denotative and connotative meaning. Now, the conceptual meaning or the apparent or the literal meaning, the dictionary meaning of a word is called what? Conceptual meaning. And the same conceptual meaning is called denotative meaning as well. Now, for example, I do not know the meaning of door, D-O-O-R. So I go and consult a dictionary. So I find out and I search the same word in a dictionary. So I will come across the meaning of, for example, door, darwaza. तो ये बेटा ये जो हम कहते हैं जाहिरी माने जो किसी लफ्ज की होती है इसको हम कहते हैं डिनोटेटिव, और इट इज द सेकंड कंसेप्शन, इट इज द सेकंड नेम ऑफ द सेम डिनोटेशन। डिनोटेशन जाहिर या डिक्शनरी मानी, जो किसी लफ्ज की माने आपको पता नहीं होती बेटा, आप जाकर डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल मीनिंग और डिनोटेटिव मीनिंग। Now, this type of meaning can be explained by breaking the word into different semantic constituents. Conceptual meaning is also called logical or cognitive meaning. The example of conceptual meaning is, for example, boy. Now, boy is equal to human. Boy human भी है बेटा, और ये मेल भी है, साथ में एडल्ट भी है। तो ये तीनों नाम जो है हम बॉय के लिए इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन भी इस्तेमाल कर सकते, मेल भी कर सकते, एडल्ट भी कर सकते। इस तरह गर्ल लीजिए, गर्ल ह्यूमन भी है, ये फीमेल भी है, मेल नहीं, सॉरी बेटा, ये फीमेल है। हाँ, ये फीमेल है और साथ में एडल्ट भी है। तो ये तीनों मानिए इस इन दोनों अल्फाज में क्या है बेटा? ये पड़े हुए। बट एनी हाउ, the overall meaning is conceptual meaning is called what? Denotative meaning as well. Denotative meaning, it has got the meaning of apparent meaning or literal meaning, the dictionary meaning of something. For example, you come across difficult word you do not know the meaning of, so all of a sudden you consult a dictionary, and dictionary you find out the meaning of the same word, that is called what? Conceptual meaning. यहाँ तक आपके ज़हन में आ गया बेटा conceptual meaning? Yes, sir. Now आते हैं बेटा connotative meaning की तरफ। Connotation, now it is English word. Connotation in Urdu language, it has got the meaning of ta'bir.
For example, I asked someone, what is the connotation of my dream? मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है? तो ये connotation लफ्ज ताबीर के लिए इस्तेमाल होता है, but that is the literal meaning. And now according to the definition, connotation का मतलब ये है कि ये मानी हम डिक्शनरी में फाइंड आउट नहीं कर सकते, बल्कि ये मानी, इस लफ्ज की मानी हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम कॉन्टेक्स्ट से, सेंटेंस से इसकी मानी हम निकालेंगे। ऐसे सैकड़ों हजारों अल्फाज इंग्लिश जुबान में है जिसकी कनोटेटिव मीनिंग होती है लेकिन डिनोटेटिव नहीं होता। डिक्शनरी अगर आप देख दे तो कुछ और होता है। यू आर गेटिंग? मतलब सर आप कहते हैं आई रन बिजनेस, तो रन की मानी अगर आप डिक्शनरी में देखते हैं बेटा तो रन का माने दौड़ाना या भागना बेटा। तो आप भगाते तो नहीं है कारोबार, कारोबार आप चलाते। तो यहाँ पर सेंटेंस से आप क्या करोगे बेटा, मीनिंग आप निकालोगे। तो इस तरह क्या होता है बेटा, कनोटेटिव मीनिंग ताबीरी मानी होती है और एसोसिएटेड मीनिंग है। और ये मानी आप क्या कर सकते बेटा, इसको आप डिक्शनरी में फाइंड आउट नहीं कर सकते। नाउ कनोटेटिव इज काइंड ऑफ एसोसिएटेड मीनिंग. Certain characteristics or features are associated with a particular word. Connotative meaning includes not only physical characteristics but also psychological, historical and social properties. हम बेटा उर्दू में हम कहते हैं आमतौर पर वो ये तो बिल्कुल अल्लामा इकबाल जैसा है। तो अल्लामा इकबाल की मानी अगर आप देखें तो मतलब ये तो कनोटेटिव ताबीरी मानी इस लफ्ज की। अल्लामा इकबाल एक शख्सियत गुजरे बेटा और इसकी अपनी हिस्ट्री, अपना तारीख है। तो जब हम उसको उस निगाह से मैं उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ तो ये अल्लामा इकबाल है। मतलब ये कि अल्लामा इकबाल का मतलब क्या है, मतलब ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड या काबिल है। तो ये अल्लामा इकबाल की मानी अगर आप डिक्शनरी में देखते या किसी और से बेटा पूछते तो कुछ और मानी आपको देंगे, लेकिन यहाँ पर ये किस सेंस में इस्तेमाल होता है बेटा, कनोटेटिव। नाउ फॉर एग्जांपल द वर्ड women mean gorgeous or emotional or sensitive, etc. The other example is the rose. Now the conceptual meaning of the word rose is flower, but its connotative meaning is freshness. तो इसकी कनोटेटिव मीनिंग क्या है बेटा, फ्रेशनेस है। ये सर और भी अल्फाज है बेटा, जैसे नाइट है तो ये ईवल के लिए इस्तेमाल होता है, या लेम रेफर टू इनोसेंस। तो हम कहते हैं इज अ लेम बॉय। तो लेम बॉय का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल वो लेम जैसा हुआ है, लेकिन ये मतलब है कि इनोसेंट है, वो इनोसेंट बॉय है। ये बॉय है, ये कनोटेटिव मीनिंग है। Denotative meaning beta, it is a dictionary meaning. Connotative meaning you can never find out in a dictionary. Instead of that you are going to find out the meaning of the same word in a context, in a sentence, in a situation जिसमें ये इस्तेमाल हो गया है बेटा। फिर आते हैं तीसरी मीनिंग की तरफ। तीसरी मीनिंग जो है ये बेटा, ये collocative meaning है। Collocative meaning consists of the association a word acquire on account of the meaning of word which tends to occur in its environment. It is created with the collocative of one word with the other. Collocation बेटा आम इंग्लिश में हम ग्रुपिंग को कहते हैं। तो बाज ऐसे अल्फाज होते हैं जो जिसके साथ खास तौर पर कुछ और आता है, कोई और लफ्ज आएगा। बतौर मिसाल मैं कहता हूँ आई ईट एप्पल, तो ये ईट और एप्पल जो ये कॉलोकेटिव वर्ड है एक दूसरे के लिए। तो आप एप्पल के लिए ड्रिंक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये ईट लफ्ज किसके साथ होगा, एप्पल। वाटर के साथ ड्रिंक इस्तेमाल होगा। तो ये एक दूसरे के साथ कॉलोकेटिव है। तो ऐसे अल्फाज बेटा, ऐसे वर्ड मीनिंग जो ग्रुप के शक्ल में आते हैं, इसको हम कहते हैं कॉलोकेटिव मीनिंग। नाउ जस्ट टेक द एग्जांपल, बॉय कॉलोकेट्स हैंडसम। ये ब्यूटीफुल कलमा हम बॉय के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी कैन नेवर यूज ब्यूटीफुल वर्ड, दो मेजॉरिटी ऑफ पीपल they are tended to use beautiful word for boys as well, but they do not know the actual history of the actual usage of. Now for boys you are supposed to use handsome. Now beautiful word is there in English. Handsome and beautiful, both of them have got one and the same meaning. These are synonym words, but beautiful is used for female. Now girls collocates pretty, beautiful as well. Roads collocate long.
तो ये कॉलोकेशन है, अल्फाज जो जोड़ों के अल्फाज में आते हैं और इससे हम मानिया खस करते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं कॉलोकेटिव मीनिंग। फिर आते हैं बेटा चौथी की तरफ स्टाइलिस्टिक मीनिंग। स्टाइलिस्टिक मीनिंग इज दैट मीनिंग which is created specifically by the use of language. When we say the same thing in different way, the stylistic meaning is created. For example, just take for example, मैं कहता हूँ आपसे, ये तो स्टाइलिस्टिक का मतलब है अंदाज, स्टाइल, किस अंदाज में आप बात करते हैं। एक शख्स से बहुत ज्यादा वीक है, जब उसका भाई या उसके फैमिली मेंबर आते तो मैं कहता हूँ ये तो बहुत ज्यादा काबिल है। तो बहुत ज्यादा काबिल है स्टाइलिस्टिकली, मेरा मतलब ये नहीं है कि काबिल है, लेकिन मैं अपने स्टाइल में एक तरीके में उसको समझाना चाहता हूँ कि ये किसी काम का नहीं है, इसको कुछ भी नहीं आता। तो इसको आप कहते हैं स्टाइलिस्टिक मीनिंग। जब आप कहते हैं कुछ एक स्टाइल, एक अंदाज के अंदाज में आप क्या कहते हैं बेटा, और मानी आप कुछ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड, ही एक्सपायर्ड, या he lived for heavenly abroad. In these sentences, the same meaning has been expressed in different style. तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं बेटा, जिस तरह लेमन का अपना अंदाज होता है बात करने का, एजुकेटेड क्या अपना होता है, डॉक्टर अपने अंदाज में बात करते हैं बेटा, इंजीनियर अपने अंदाज में। तो ये स्टाइलिस्टिक, इसको हम कहते हैं स्टाइलिस्टिक मीनिंग। फिर आते हैं बेटा पांचवी किस्म की तरफ, और इसका रिफ्लेक्टिव मीनिंग है। Reflective meaning is the meaning which arises in cases of multiple conceptual meaning. Multiple denotative meaning है, तो इससे क्या आ जाता है बेटा, reflective meaning आ जाती है। It is what is communicated through association with other senses of the same expression. It occurs when one sense of word forms part of or response to another sense. The example of reflected meaning is a synonymous expression of the Comforter and the Holy Ghost, but referring to the third person of the Trinity. One may find one's reaction to these terms conditioned by the everyday non-religious meanings of the comforting and ghost. The Comforter sounds warm and comforting, while the Holy Ghost sounds awesome. तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्टिव मीनिंग कहते हैं। रिफ्लेक्टिव मीनिंग क्या है, यही कंसेप्चुअल मीनिंग है बेटा, यही डिनोटेटिव मीनिंग है। लेकिन इस क्या होता है, इसका रिफ्लेक्शन क्या होता है सोसाइटी में, किस तरह लोग उसको लेते हैं। जिस तरह गोस्ट हम कहते हैं, तो गोस्ट लोग नेगेटिवली उस पर रिफ्लेक्शन होता है, भूत या जिनी वगैरह की तरफ इंसान की ज़हन जाती है। अगर हम बेटा एडम की तरफ या इस तरह किसी और नाम की तरफ हम चले जाते तो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन हमारे जहन में आ जाता है। तो ये रिफ्लेक्टिव मीनिंग ये है कि ये पैसेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसके साथ मीनिंग के साथ इसके अपना रिफ्लेक्शन भी साथ में क्या हो जाता है, मशहूर हो जाता है। जिस तरह बेटा किलिंग है, कत्ल, तो नेगेटिव रिफ्लेक्शन इसके साथ होती है ना, या मर्सी है तो मर्सी के साथ पॉजिटिव कंसेप्ट होता है। तो इस तरह इसको हम कहते हैं बेटा रिफ्लेक्टिव मीनिंग। Affective meaning is largely a parasite category in the sense that to express our emotion we rely upon the mediation of the other categories of meaning, conceptual, connotative, or stylistic. Now, emotional expressions through style come about, for instance, when we adopt an impolite tone to express friendliness. On the other hand, there are elements of language whose chief function is to express emotion. फिर ये थीमेटिक मीनिंग है बेटा, इसमें हम थीम वाली मीनिंग, जो सब्जेक्ट मैटर वाला होता है, तो उसको हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम इसमें पढ़ते हैं। बेटा डू यू गेट व्हाटएवर आई टॉक अबाउट? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। एक मिनट के लिए ये मैं ऑफ करता हूँ, ये फिर दूसरे क्लास की तरफ में आता हूँ बेटा, ठीक है? टाइम खत्म हो रहा है तो इसी